जब हम लोग थोड़ा जोर से लाइन बोलो या आप। फिर रे बनाते, सर जब यस, हम ओके लोग ओके। एक बार लाइन या फिर रे बनाते हैं तो हाँ उसमें ऐसा लिखते हैं ना कि जैसे लाइन ए एंड पी, तो उसमें फिर हमें कैपिटल लिखना रहता है, तो रो देखो, बनाते हैं उसमें एक ही okay, लिखना रहता है, let तो me उसमें explain सिंगल once बनाना again. रहता है ना। Okay, chant Omkaram 3 times, then I'll explain again. Sai Ram. Okay, beta, I welcome you once again, right? And let me present my screen. Okay. Yeah. And today, who will guide me? Tell me, who is the monitor today? Give me your name. Vedansh. Divya. Divya Jain. Okay, Divya, you will guide me. Okay, Divya, be ready. Divya Jain. Okay, Divya को रहने दो मानव. Today Divya will, है ना, Divya will help me. Okay, beta. So just see. Yeah, Divya, can you see the date, beta? Yes, sir. Date दिख रही है? Date आपको दिख रही है? Yes, Date, can you see on the sir. screen? Good. So we'll begin today by angle, है ना? Angle बेटा देखो, see. नो है? सर, नहीं दिख रहा? आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आई? सर क्लियर है, सर आ गई। है? सर आ रही है On the स्क्रीन। top, आ रही on the है top आ you can रही है see सर, आ रही date, स्क्रीन आ रही date है in red. सर 22/7/2020। हाँ, okay. मानव you सर, can guide इसमें me बेटा. पिन कर दिया हूँ। हाँ बेटा, मानव you can guide me बेटा. Okay, see बेटा. सर आ You गई। can see. हाँ, see this diagram बेटा. इस डायग्राम को देखो. Can you see two rays, ray OP and ray OQ? Manav, unmute yourself. Manav Jain. Okay, he's not there. So Vedansh, can you hear me? सर Okay, beta. So you reply me. Can you see two rays here, ray OP and ray OQ? यस सर, Yes, beta. And both the सर रे rays. ओपी एंड रे हाँ बेटा. See, OQ. listen. Both the rays, they have the same end point O. O is the end point of ray OP also. O is the end point of ray OQ also. So both of these rays are having same end point, and as a result, we can see an inclination. एक झुकाव बन रहा है, and this is called an angle. So we define an angle is made up of two rays starting from a common end point. They have a common end point. In this way, an angle is formed. Okay, so for the formation of angle, we need two rays. हमें दो रे चाहिए, and both the rays when meet at their initial point or their common end point, then an angle is formed. Okay, beta. This angle is formed with the help of two rays, OP, ray OP, and ray OQ. You can see ray OP and ray OQ. And O is called the vertex of the angle. An angle has two elements. One vertex. Vertex is O here. Vertex is a point. ओके बेटा. एंड टू आर्म्स बोलते हैं और साइड्स बोलते हैं एंगल का, वो है रे ओपी एंड रे ओक्यू. दीज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल. ओके, एंड हाउ डू वी नेम इट? नेम करने के लिए दो तरीके हैं बेटा. अगर सिंगल एंगल हो तो वर्टेक्स से नाम दे सकते हैं. जैसे इसका नाम है एंगल ओ. ओ इज द वर्टेक्स, सो वी कैन कॉल इट एंगल ओ. ये एंगल का साइन है, छोटा सा एंगल ऐसा बनाते हैं, एंगल ओ. और वी कैन कॉल इट बाय 3 लेटर्स, है ना बेटा, एंगल पी ओ क्यू लाइक दिस. और यू कैन कॉल फ्रॉम दिस डायरेक्शन एंगल क्यू ओ पी. एक ही बात है.
either you say angle POQ or angle QOP. Any doubt? Vedansh? Vedansh? No, Okay, sir. beta. So No, sir. an angle, and now let us go to next slide. Okay, now see how many angles can you see in this figure? Sir, 2. Only 2. Sir, 2. Acha, more than 2, anybody? Sir, 3. 3. Okay, this angle has 3 angle, this figure has 3 angle beta. 3. Sir, 3 rays है पर नहीं, 3 rays, 3 angles are there. देखो, this angle, and this angle, and one this Yes, sir. angle. Yes, sir. So this figure has 3 angles. ध्यान से देखो, एंगल ए पी बी, नाम देखो बेटा, एंगल ए पी बी, यू मे राइट डाउन 1 हियर, आप कॉपी में यहाँ पर 1 डाल के ऐसे बना लो. देन एंगल सी पी बी, एंगल 2 बोल सकते हो, और एक दोनों को मिला करके, है ना बेटा, इस रे को भूल जाओ, फॉरगेट पी बी. देन एंगल ए पी सी. So there are 3 angles here. Angle APB, angle CPB, and angle APC. बड़ा एंगल जो है, 2 छोटे छोटे एंगल है, एक बड़ा एंगल हमारे पास है. Any doubt बेटा? No, sir. You can read angle APB as angle BPA. Okay? You can read angle CPB as angle BPC. You can start from any one point beta, है ना? But remember, the vertex should always be in the middle. Vertex को बीच में लिखना है, याद रहेगा ये बात? ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, है ना? Note that in specifying the angle, the vertex is always written as the middle letter. Okay बेटा? Now let us go to the canvas. थोड़ा canvas में चलते हैं हम. Canvas कहाँ गया मेरा? Yeah. Okay. So here you can see a figure. Vedansh? Yes, sir. Okay. So in this figure, how many angles are there? Count and tell me. Number. सिर्फ गिनती बता दो पहले, नाम बाद में लिखेंगे. Sir, 5. Sir, 6. 6. 6. 6. 6 से ज्यादा है. 10 किसने बोला? 7. 10 is the right answer. 10 is the right answer. 10 angles है बेटा, है ना? अब आप नाम लिखते जाओ, मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है? फिर गिनती करना. आप देखो, मैं नाम बोल रहा हूँ, आप एंगल ए ओ बी, अभी ए को छोड़ेंगे नहीं, इसको छोड़ेंगे. पहला क्या बोला मैंने? लिखते जाना, फिर काउंट करना. एंगल ए ओ बी लिखने आएगा ना, एंगल साइन बनाओगे, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ सी. देखो, है ना, ए को मैं छोड़ नहीं रहा हूं अभी. एंगल ए ओ डी, है ना बेटा? देन एंगल ए ओ ई, है ना? नाउ ए को छोड़ देंगे हम, ठीक है? बी शुरू करेंगे. एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ डी, Angle BOD. हाँ, एंगल बी ओ Angle ई, BOE. है ना बेटा? अब बी को छोड़ेंगे, फिर क्या मिलेगा? देखो, एंगल सी ओ डी, एक भी मिस नहीं करोगे. लर्न हाउ आई एम डूइंग, है ना बेटा? सारे एंगल लिख पाओगे. एंगल सी ओ ई, और फिर सी को भी भूल जाओ. कौन बचा? डी. एंगल डी ओ ई, एंड योर ऑल एंगल्स आर रेडी. हाउ मेनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अगेन सेम मेथड काम कर रहा है हमारा. छोटे छोटे कितने एंगल बन रहे हैं? देखो, 1 2 3 4, छोटे छोटे स्मॉलर देखना. 1 2 3 4, एंड राइट डाउन 4, then 3, then 2, then 1. add them. These many angles will be found. तो अगर बहुत बड़ा फिगर को बनाकर दे दे और बोले हाउ मेनी एंगल्स आर देयर, घबराने की जरूरत नहीं है. बट यू रिमेंबर दिस मेथड. ठीक है बेटा? अच्छा, कोई ने पूछा आपको, बताओ. एक अलग से चल रहा बेटा. 1 + 2 + 3
प्लस ऐसे प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 ऐसे से प्लस 50। क्या होगा सम इसका बताओ? चलो छोटा पहले करते हैं, 10 तक लेते हैं पहले। 10 तक करो, 10 तक कितना होगा आंसर? 56 10 सर तक बोलो, 9 10 तक कितना होगा? हैं? 10 तक करो तो कितना आएगा आंसर? मैं आपको एक शॉर्ट मेथड दूंगा, जल्दी से निकलेगा वो। 10 तक कितना आया बताओ? अभी तो अकाउंट लिख के ऐड कर सकते हो आप। कितना आया? सर 55 55 आ रहा है ना? करेक्ट, राइट आंसर है बेटा, है सर ना? लेकिन क्या 55। हर बार हम ऐसा करेंगे? देखो शॉर्ट मेथड देखना, कहाँ तक? 10 तक करना है बेटा, ना ध्यान से देखो। 10 लिखो पहले, ओके। 10 इंटू एक नंबर से ज्यादा क्या होगा? 10 प्लस 1 11। इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 2। सर ये समझ नहीं आया, ये 10 कहाँ से आया? 1 2 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। कितना आंसर आएगा इसका? लगातार 1 से 10 तक के नंबर को जोड़ रहे हैं तो कितना आंसर आएगा? आंसर अभी बताया था 55 आ रहा है। अब क्या हर बार हम 1 2 3 4 लिखेंगे फिर ऐड करेंगे? एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ इसका। तो नंबर लास्ट कौन था? 10 था, बट याद रखो नंबर 1 से शुरू होना चाहिए, याद रखोगे बेटा, है ना? तो 10 तक का अकाउंट ऐड करना था बेटा, तो 10 इंटू 11 वन मोर कर देना डिवाइडेड बाई 2। तो 11 10 जा 110 होगा, और उसको 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? देखो 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, 55 आंसर हो गया कि नहीं? देखो, है ना? ठीक है। और अगर आप मल्टीप्लिकेशन सीख लोगे फ्रैक्शन का, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। देखो एक नंबर डिवाइड हो गया, तो 11 5 जा 55, सीधा आंसर आ जाएगा। ऐसे भी एक नंबर डिवाइड हो जाएगा, आपको 2 से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना। चलो नंबर को बढ़ाता हूं मैं, ठीक है? अगला करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 10। मान लो 20 तक का कितना आएगा? सर 110 कितना? सर 110 नहीं बेटा, ध्यान से करो। 20 इंटू 21/2 होगा, है ना? 210। हाँ यस, 210 राइट आंसर, है ना बेटा? 20 तो नंबर हमारा है, इसके आगे नंबर कौन होगा? 21 सर होगा, 210। डिवाइडेड बाई 2। तो 2 10 जा 20, सर 21 10 जा 210, 210। तो मान लो अगर बहुत ज्यादा नंबर आ जाए तो कितना ऐड करोगे आप? मेरा शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हो, मैं ऐसे से बहुत सारे दे दूं। इसके अंदर मान लो 50 स्मॉलर एंगल बन जाए, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 6 अप टू 50 ऐड करना। जल्दी से कैसे करोगे? जल्दी बोलो। अगर मैं बोल दूं 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड प्लस सो ऑन अप टू प्लस 50, कितना आंसर आएगा? 1275। हाँ 1275। है ना बेटा? 25 इंटू 55 51 हो जाएगा, 25 इंटू 51 आएगा, है ना? 25 और ये 125 हो जाएगा, 5। नहीं ठीक से करो, है ना? 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है? ये आएगा। तो इसका आंसर आएगा 5 1 जा 5 5 25 2550 डिवाइडेड बाई 2। ये सर आंसर हो जाएगा। सर 1 जा 2, 460। 2 2 जा 4, सर 2 7 जा 14, 465। 1275। कितना आंसर यस आएगा? सर। सर सर 1275। 1275, राइट बेटा? सो हम बताया को ना, सीरीज में अगर नंबर लगातार जोड़ना हो तो जल्दी से हम कर सकते हैं, ये शॉर्टकट मेथड हमारे पास है। ओके बेटा, लेट अस कम बैक टू द एंगल। एक और बार बता दोगे? हाँ बेटा, एक बार और बताऊं? अच्छा ठीक है, यस ये मैं सर। बता रहा था। हाँ चलो ठीक है, ये बताना चाह रहा था मैं बेटा। सी, अगर आपको स्टार्टिंग फ्रॉम 1, लेकिन ध्यान रखना 1 प्लस 2 सर प्लस, अनुभा कह रही है कि उसका वो वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। क्या मिस हो गया? सर अनुभा चैट बॉक्स में कह रही है कि उसका आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है।
मेरी वॉइस ठीक हो इसका मतलब शी मस्ट बी हैविंग नेटवर्क प्रॉब्लम। बेटा थोड़ा मोबाइल को इधर उधर करो आप, है ना, नेटवर्क सही नहीं मिल रहा होगा आपको अनुभव। ठीक है बेटा, नेटवर्क चेक करो, डंडे कितने आ रहे हैं चेक करो उसमें। देखो बेटा 1+2+3+4 ऐसे ऐसे नंबर बढ़ता जाए, 4+5+6+7+10 ऐसे लगातार लगातार चलते जाए हम, प्लस मान लो 30, कितना आएगा सम हमारा 1 2 3 4 नीचे तक लिखते जा रहे हैं, 30 तक लिखा मैंने, और उसको ऐड करना है जल्दी से, कितना आंसर आएगा? हाँ 465 राइट आंसर। तो मैंने बताया रूल क्या बताया, देखो 30 तक करना था बेटा, तो 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे मोर देन 1, 30 + 1 कितना होता है 31, इसको मल्टीप्लाई करो और जो नंबर आएगा 2 से डिवाइड कर दो उसको, यू विल गेट द आंसर, है ना। तो 30 डिवाइड हो जाएगा 2 से, 15 टू या 30, 15 इंटू 31 कर लो, आंसर आ जाएगा, है ना। और नहीं तो आप दोनों मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 930 आएगा बेटा मल्टीप्लाई करने पर, एंड डिवाइडेड बाई 2, 2 4 जा 8, 1 मिलाएंगे, 2 6 जा 12 एंड 1 एंड 0 आएगा 2 465 इज द राइट आंसर। जल्दी से कर सकते हैं बेटा, ऐसे आप, है ना, करके देखना 1 + 2 + 3 प्लस अप टू 100, कितना आंसर आएगा? डन। सर 550। हैं? सर 550। 550 नहीं आएगा बेटा, ठीक से करो। 5050। यस 5050 द राइट आंसर बेटा, यस सर। 5050 द राइट आंसर। देखो कितना जल्दी हो गया। अब सोचो आप, अगर आप 1 2 3 4 ऐसे नीचे नीचे लिखते हैं तो 100 तक लिखने में इतना टाइम चला गया होता आपका, फिर ऐड करने में टाइम जाता। जल्दी हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना बेटा? यस अगर कोई बोले कि चलो 1 से नहीं दिया, ठीक है बेटा, 5 से दे दिया, हमको 5 से दिया और इधर वाला मिटा दिया, तब कितना आंसर करेंगे? तो कैन वी डू इट और नॉट? हम 1 से पहले कर लेंगे आंसर, है ना बेटा, 1 से करेंगे और बाद में माइनस कर देंगे, कहां तक का? 4 तक का सम, 1 + 2 + 3 + 4 का सम माइनस कर दो, इसमें से कितना माइनस करेंगे, है ना? कितना माइनस होगा बेटा? 1 + 2 + 3 + 4 सर 10। 10, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5040। 40। तो कई बार आपको 1 से नहीं दिया, आप बोलो सर तो 1 से बताए थे, अब मैं क्या करूं, फिर अपना दिमाग लगाना, ठीक है। ओके बेटा, ये थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा हो गया हमारा। लेट अस कम टू द एंगल। ओके बेटा, सो व्हेन वी नेम एन एंगल, if the angle is single then we can name it by the vertex, angle and the vertex का नाम बोलते हैं। अगर सिर्फ एंगल एपी भी होता, ये नहीं होता, तो एंगल पी हम बोलते थे इसको, लेकिन यहाँ पर एंगल पी बोलेंगे तो कंफ्यूजन है। एंगल पी मींस दिस एंगल और दिस एंगल और दिस होल एंगल, सो बेटर टू यूज 3 लेटर्स, 3 लेटर पकड़ेंगे, है ना बेटा, एंगल ए पी बी, एंगल बी पी सी एंड एंगल ए पी सी। ओके, लेट्स गो अहेड। Now tell me in this okay, let me come to the slides. So first slides yeah, okay beta, now see this figure. Okay, now tell me where is point X? Point X is in the interior of angle PO, इंटीरियर, है ना। एंगल का नाम क्या देंगे पहले? एंगल पी क्यू आर।
पॉइंट एक्स इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर। देखो इस रे को जहां तक बढ़ा सकते हैं हम, उसके अंदर अगर आ रहा है पॉइंट, इंटीरियर हो जाएगा। एंड वेयर इज पॉइंट जेड, वेयर इज पॉइंट जेड बेटा? सर एक्सटीरियर। सर अरे बेटा हाँ, हर फिगर में हम ये खोजेंगे, ढूंढेंगे हम इंटीरियर एक्सटीरियर ऑन द फिगर। एंड वेयर इज पॉइंट एस, वेयर इज पॉइंट एस? border of the angle. ऑन द एंगल, सिंपल। Sir, जो on नाम the है फिगर का, ऑन, जो बाउंड्री On पर the होगा, angle. ऑन द एंगल पी क्यू आर। सो वी कैन से दैट पॉइंट एक्स इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर, point Z is in the exterior of point angle PQR, and point S is on the angle PQR. ओके और जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा ऑन द एंगल होता है बेटा। वेयर इज पॉइंट Q? ऑन द एंगल P, On the angle. है ना, ऑलवेज होगा बेटा वो, है ना। सो सी in this diagram, point X is in the interior of the angle, point Z is not in the interior but in the exterior of the angle, and point S is on the angle PQR. Any doubt? No, sir. No. Good. Let us go ahead. Now we can do exercise 4.3. Exercise 4.3. You can see your book. देखो बेटा एक्सरसाइज 4.3 नाउ देखो, है ना। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक इफ यू आर हैविंग, इफ नॉट देन सी माय प्रेजेंटेशन। You can see question number 1. Name the angles in the given figure. You can see how many angles can you see here? One angle is this, one angle is this, one angle is this, other angle is this. So we may call it angle A, angle B, angle C, and angle D. And how many angles? 5 angles are here, or 4 angles are here. How many? 4. 5. अरे 4 ही है भाई, कहाँ 5 है? 1 4. 2 3 and 4. मैंने जानबूझकर 5 बोला था कंफ्यूज करने के लिए आपको। So 4 angles are here and we can name it Yes. angle A, angle B, इस तरह से ले सकते हैं हम, है ना। ये देखो कैनवास खाते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। और एक और तरीके से नाम बोल सकते हैं हम, या वन मोर वे वी कैन नेम इट। देखो एंगल ए को हम ऐसा बोल सकते हैं भी, एंगल डी ए बी, और यू कैन कॉल एंगल बी ए डी यूजिंग 3 letters। फिर एंगल बी क्या बोल सकते हैं? एंगल ए बी सी, एंड दिस एंगल एंगल बी सी डी, और दिस एंगल एंगल सी डी ए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट, है ना, बहुत सारे पॉइंट दिख रहे हैं आपको। I mean in the interior of angle DOE. पहले एंगल देखो, एंगल DOE. So which point is in the interior of angle DOE? वेदांश, point? Point A, है ना बेटा। In the exterior of angle EOF, angle EOF. So which points are in the exterior? C. पॉइंट सी, और भी तो है ए, 2 मिनट के लिए और एक और है डी भी तो है बेटा। देखो ये भी तो बाहर ही है। देखो एंगल पहले देख लो, एंगल ई ओ एफ, ये एंगल हमारा है। अब बाकी इसके बाहर जितने पॉइंट है, पॉइंट सी, पॉइंट ए, पॉइंट डी, दे ऑल आर इन द एक्सटीरियर ऑफ दिस एंगल, दिस एंगल। ओके, एंड व्हिच पॉइंट्स आर ऑन एंगल ई ओ। सर लेकिन वो तो DOE वाले एंगल का है ना ए तो। बेटा उसको तो भूल जाना, सिर्फ पॉइंट पूछ रहा है। एज ए पॉइंट है कि नहीं, ये भी पॉइंट पूछ रहा है बेटा। एज ए पॉइंट तो है ना। इस एंगल के अलावा बाकी जितने पॉइंट पूछ रहे थे, पॉइंट डी भी आएगा उसमें हमारा। ठीक है। यस सर। ऑन एंगल EOF, ऑन एंगल EOF। सर ओ तो होगा ही, और E, B, O and F।
है ना? So in this way it's very easy बेटा, है ना? And now draw rough diagrams. आपको खुद डायग्राम बनाने हैं. One point in common. Two angles बनाना है. Draw rough diagrams of two angles. दो एंगल बनाइए such that they have one common point. दो एंगल बनाइए, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए. Then another two angles, 2 points in common, 3 points in common, 4 points in common. Can you draw? कोशिश कीजिए. देखो, 1 point in common, then we can draw. देखो 1 एंगल ये हो गया हमारा बेटा, और अदर एंगल मान लो ये बना दें हम, तो ये पॉइंट तो कॉमन होगा ना दोनों में. मान लो देखो ये एक तरीका ये भी हो सकता है हमारा. देखो ये पॉइंट कॉमन दोनों में है. देखो ये एंगल 1, ये एंगल 2 मान लो, एक एंगल 1 एंगल 2, एंड बोथ आर हैविंग पॉइंट O एज कॉमन. O इज ए पार्ट ऑफ एंगल 1 आल्सो, O इज ए पार्ट ऑफ एंगल 2 आल्सो. एक तरीका ये हो सकता है. दूसरा तरीका देखो, और ये देखना 1 पॉइंट इन कॉमन. और सभी लोग देखो बेटा, ये फिगर जो मैं गोला लगा रहा हूँ फिगर में, ध्यान से देखो इस फिगर को, है ना? आर वी हैविंग टू एंगल्स हियर वेदांश? Yes, sir. Angle 1, angle 2, and what can you say about point P? Is it common or not? Yes, sir. Point P is a part of angle 1 also. It's a part of angle 2 also. So ऐसे बना भी सकते हो. वो भी सही था, ये भी सही है. अब देखो 2 points in common. इंटरसेक्ट हो रहा है दो एंगल के बीच में. हाँ बेटा, स्पीक लाउडर. इंटरसेक्ट हो रहा है बीच में हाँ. दो एंगल्स के. अच्छा, अब देखो 2 points in common. Then you see another circle. I am making it by another color, red color. देखो ये फिगर को देखना, जिसको मैं रेड से कलर कर रहा हूँ, इसको देखो तो देखो एंगल 1 एंड एंगल 2, दो एंगल बनाया मैंने. एंड हाउ मेनी पॉइंट्स आर कॉमन? पॉइंट P एंड पॉइंट Q आर कॉमन, है ना बेटा? अब देखो ये दिस अनदर वन जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, देखो हाँ देखो इसमें देखो एंगल 1 एंड एंगल 2, एंड हाउ मेनी पॉइंट्स? पॉइंट P, पॉइंट Q एंड पॉइंट R आर कॉमन. तीनों में, दोनों एंगल में है. इस तरह से अनदर फिगर देखो, ये सर्कल को देखो आप, ये सर्कल देखो, इसमें बना देखो ध्यान से. एंगल 1 एंड एंगल 2, एंड हाउ मेनी पॉइंट्स आर कॉमन? पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R एंड पॉइंट S. इस तरह से बना सकते हो आप. और you can do another way also, है ना? You can do another way also. देखो 1 point is common, so this angle देखो मार्क किया हुआ है ऐसे, and this angle it is having point O as common, है ना? O is the common point. और 2 points in common, तो क्या करो, जो कॉमन रे है दोनों का, एक पॉइंट वहां डाल दो. वो पॉइंट तो कॉमन था ही बेटा, एक पॉइंट इस पर डाल दो B. So angle BOC and angle AOB have 2 points common, point O and point B. इस रे पे डाल देना, जितना पॉइंट घटेगा. एक तो ये हो जाएगा कॉमन तुम्हारा, बाकी एक और चाहिए था, इस पर डाल दो. ऐसे यहाँ कितने 3 पॉइंट्स इन कॉमन. तो क्या किया देखो, जो कॉमन रे है दोनों का, उस पर 2 पॉइंट और डाल दिया. वो तो रहेगा ही कॉमन, तो 1 2 3 पॉइंट कॉमन हो गया. ऐसे 4 पॉइंट कॉमन क्या कर लिया उसने, एक पॉइंट वो तो कॉमन था ही, 3 पॉइंट और डाल दिया इसके ऊपर में. इस तरह भी कर सकते हो आप, ठीक है? एंड यू कैन डू इन अनदर वे व्हिच आई एक्सप्लेन. एनी डाउट? आई थिंक है ना बेटा? लेट अस गो अहेड, है ना? और क्वेश्चन नंबर सी है 1 रे कॉमन, है ना बेटा? तो दिस रे इज कॉमन, रे OC इज कॉमन इन एंगल AOC एंड एंगल BOC. Both angles have one ray common. Ray OC is common in angle AOC and angle BOC. Okay? Any doubt? No? Then we'll go to the another concept, triangle. Okay beta? What is a triangle? A triangle is a 3-sided polygon. है ना बेटा? A triangle is a 3-sided polygon. 3 साइड का बना हुआ पॉलीगन होता है, एंड इज द सिंपलेस्ट पॉलीगन, है ना? ट्रायंगल से
3 साइड से छूटा आप पॉलीगॉन नहीं क्लोज कर सकते, बंद ही नहीं होगा वो दो साइड से, है ना वेदांश? सो अ ट्रायंगल इज अ 3-sided polygon. Okay, it is a polygon with the least number of sides. Minimum number of side for a polygon must be 3. 3 से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा जितना हो, है ना? अब ध्यान से देखो, a triangle, elements of triangle, a triangle has 3 sides. Yes बेटा? सर ट्रायंगल की स्पेलिंग में ही ट्राई एंगल होता है। हाँ, ट्रायंगल लिखते हैं, पढ़ते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल बोलते बोलते ट्रायंगल हो जाता है, ठीक है बेटा? ट्राई एंगल, ट्राई मीन्स 3, एंगल मीन्स एंगल, अ फिगर विच हैज 3 एंगल्स। देखो 3 एंगल भी होगा इसमें, देखो एंगल 1 एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, इस नाम ट्रायंगल इसका है, ठीक है? बट मोस्टली वी रिकॉग्नाइज इट बाय द साइड। इट हैज 3 साइड्स, अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। देखो साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड सी ए, ठीक है बेटा? A triangle has 3 angles. यहाँ पर एंगल A, एंगल B, एंगल C. We may call angle A as angle B A C. This angle angle A B C. This angle and this angle A C B. Okay. And there are 3 points you can see. These are called vertices of the triangle. So there are 3 vertices: vertex A, vertex B, and vertex C. Any doubt? A triangle has 3 things, है ना बेटा? हमारे पास देखो कान भी है, नाक भी है, आंख भी है, हाथ भी है, कितने सारे है ना हमारे ऑर्गन्स है। सर ट्रायंगल के पास क्या है? 3 sides, 3 angles and 3 vertices. Yes बेटा बोलो। सर व्हाट इज वर्टेक्स? वर्टेक्स देखो, a point where 2 sides meet is called vertex. देखो पॉइंट ए पर क्या क्या मिल रहा है? साइड ए बी एंड साइड ए सी दोनों मिल रहा है ना यहाँ पर, उसको कहते हैं वर्टेक्स हम लोग बेटा, ठीक है? वर्टेक्स इज द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स। 2 साइड जहां मिल रहा है उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। ओके, यस सर। so vertex A and another vertex is B and one more vertex is C. So a triangle has 3 and vertices is the plural, you may call vertices. Okay beta, 3 vertices, vertex A, vertex B, vertex C, 3 sides, side AB, you may call it side BA, है ना बेटा? लाइन सेगमेंट को दोनों पढ़ सकते हैं हम, साइड AB, साइड BC एंड साइड CA, you may call it side AC, एक ही बात रहेगा। एंड 3 एंगल्स, यहाँ पर एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, और एंगल ए को हम ये पढ़ सकते हैं एंगल BAC, और वी मे कॉल एंगल CAB, ठीक है बेटा? एंगल बी वी कैन आल्सो रीड एंगल ABC, वर्टेक्स को बीच में रखना है, और C को एंगल ACB और एंगल BCA। तो एंगल को हम 3 लेटर से नाम लिखें, दैट इज वेरी वेरी गुड वे बेटा, है ना? बट जहां पर कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं है, so we can use only 1 letter also, angle A, angle B and angle C. But best way is that like this, angle BAC, angle BCA and angle ABC, है ना? 3 angles. Okay, now you see again, triangle is a polygon. So a polygon has interior, exterior and on the boundary. So where is point P? सर इंटीरियर। Interior. Where is point R? Exterior. Exterior. And where is point Q? On the angle. On the triangle. Triangle नाम है ना बेटा, तो triangle बोलेंगे on the triangle. Sir, Boundary करो on the triangle. हाँ बेटा on the triangle, है ना? तो इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द फिगर। और ध्यान रखो बेटा, ये जो पॉइंट इंटीरियर है ना, Yes, sir. इंटीरियर प्लस बाउंड्री टुगेदर इट इज कॉल्ड रीजन, रीजन बोलते हैं। सो अगर हम शेडिंग करना शुरू कर दे, पेंसिल लें और ये पूरे को शेड कर दें, ऐसे ऐसे शेड कर दें पूरे को, तो इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर रीजन। क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर रीजन, ट्रायंगुलर रीजन, ट्रायंगुलर रीजन, ट्रायंगुलर रीजन। यस सी, है ना? लेट मी ड्रॉ ट्रायंगल। सर ट्रायंगल के भी ध्यान से देखो, हाँ बेटा, होते हैं। एक मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक है बेटा? और ये इंटीरियर उसका है और ये बाउंड्री है, तो बाउंड्री प्लस इंटीरियर, अगर मैं इसको शेड कर दूं इस तरह से या कलर कर दूं पूरे को, दिख रहा है बेटा?
सो दिस बाहर नहीं आना चाहिए, है ना। ये जो शेडेड पोर्शन है इंटीरियर टुगेदर विथ बाउंड्री, इट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर रीजन। क्या बोलेंगे इसको हम? सर ट्रायंगुलर Triangular region. TRIANGLU ट्रायंगुलर AR ट्रायंगुलर रीजन REGION ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है बेटा, रीजन वर्ड याद रखना। इंटीरियर बताया था मैंने पॉलीगॉन में, मैंने एक पॉलीगॉन बना के बताया था ना शुरू में, देखो इंटीरियर याद रखना, बिगिनिंग में बताया था मैंने। इंटीरियर प्लस बाउंड्री इज कॉल्ड रीजन ऑफ एनी पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन का नाम ट्रायंगल है तो इट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर रीजन। ओके ओके बेटा, नाउ यू कैन डू एक्सरसाइज 4.4। ओके, एक्सरसाइज 4.4 देखो आप, एक्सरसाइज 4.4 जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 1 से ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल ABC। आपको खुद कह रहा है, करिए आप लोग कॉपी में, बनाइए फटाफट एक ट्रायंगल बनाओ, नेम इट ABC, देन इट इज ए मार्क अ पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर, इंटीरियर में पॉइंट P मार्क करो, अ पॉइंट Q इन द एक्सटीरियर, वही क्वेश्चन पूछ दिया जो मैंने दिखाया। एंड अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है इज पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर? सर ऑन द एंगल। हाँ, ऑन द ट्रायंगल बोलेंगे उसको, है ना बेटा। देखो मैं अनदर फिगर बना के दिखा रहा हूँ आपको, न्यू ड्राइंग। सी उसने कहा ट्रायंगल बनाइए, सो वी मे ड्रॉ अ ट्रायंगल, नाम बोला ट्रायंगल ABC। मान लो मैं यहाँ शुरू करता हूँ, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, बस ऑर्डर में घूमना बेटा, एक तरफ से घूमना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, 3 है तो ABC, है ना बेटा। नाउ मार्क अ पॉइंट P इन द इंटीरियर, सो पॉइंट P मान लो कहाँ होगा, ये हो गया हमारा पॉइंट P इंटीरियर में। पॉइंट Q कहाँ बोला था, एक्सटीरियर में, बाहर कहीं मार्क कर देंगे। एंड वेयर इज पॉइंट A? इज पॉइंट A इन द इंटीरियर, इन द एक्सटीरियर, ऑन द ट्रायंगल। ऑन द ट्रायंगल। हाँ, वर्टाइसेज आर ऑलवेज ऑन द पॉलीगॉन, जितने पॉलीगॉन होंगे वर्टाइसेज सारे उसके पार्ट होंगे भाई, है ना, एक तो इसका पार्ट है, एक को हटा देंगे तो ट्रायंगल का नाम क्या बोलोगे, फिर तो कुछ दूसरा नाम देना पड़ेगा, है ना। गुड, सो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई इन दिस फिगर। इस फिगर देखो आप, फिगर में आइडेंटिफाई करना है क्या क्या, 3 ट्रायंगल्स दिख रहा है, 3 ट्रायंगल आपको, यस सर। सर 2 छोटे छोटे और एक बड़ा, बड़ा वाला, है ना बेटा। हाँ, तो एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है ट्रायंगल ADC, है ना, फिर ये छोटा दिख रहा है ट्रायंगल BAD, और एक पूरा दोनों को मिला करके ट्रायंगल ABC। ठीक है बेटा, यू मे सी माय PPT। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, राइट आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स, सो द 3 ट्रायंगल्स आर, ये गलत साइन दिया हुआ, इसमें ट्रायंगल का साइन आएगा, है ना बेटा, ट्रायंगल का साइन देना, इसको बंद करना, ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, एंगल साइन लगा दिया इसने, ट्रायंगल का छोटा ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है बेटा, इसमें एंगल का साइन लग गया है, ट्रायंगल करना है इसको। इस फिगर में इधर बनाओ, चलो इधर बनाते हैं, या यहाँ बनाते हैं। देखो ये ट्रायंगल हमारा कैसे था, ऐसे फिगर था बेटा, नाम बताना मुझे, कहाँ का था, एक हाथ, सॉरी एक्स्ट्रा हो गया। हाँ, देखो ये कहाँ था बेटा, फिगर में देखो, हाँ ABC, बीच में D है, ABC। ओके, A सर बीच में एक लाइन है उसमें D है। B C, और यहाँ से एक लाइन दिया हुआ है, उसका नाम है D, है ना। तो 3 ट्रायंगल्स आर देयर, वी कैन नेम देम। देखो पहला होगा ट्रायंगल का साइन देना, छोटा ट्रायंगल नाम, ट्रायंगल लिखने के बजाय छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं बेटा, ट्रायंगल ABD, एक ट्रायंगल होगा कि नहीं, ट्रायंगल ABD। देखो ध्यान से, आप उंगली घुमाओ अपनी, ट्रायंगल ABD। दूसरा कौन बनेगा, ट्रायंगल ADC, ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो, है ना बेटा। यस सर, और दूसरा ADC है। हाँ,
और तीसरा क्या मिलेगा, पूरा बड़ा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, इसको भूल जाओ बीच लाइन को, ट्रायंगल ए बी सी, है ना। इस तरह से हमें ट्रायंगल 3 मिल गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स, है ना, नहीं 7 एंगल्स, राइट द नेम ऑफ 7 एंगल्स। 7 एंगल, देखो एक एंगल लिया, 1 एंगल, 2, 3, 4, 5, 6 और एक बड़ा सा एंगल 7, या यहाँ पर एक बड़ा सा एंगल है 7, ठीक है। यहाँ पर एक पूरा एंगल है, तो क्या क्या नाम दे सकते हैं, देखो एंगल बी ए सी, ये बड़ा वाला एंगल पूरा ले लो, एंगल बी ए सी ये पूरा बड़ा वाला एंगल, एंगल बी ए डी ये छोटा वाला एंगल, एंगल सी ए डी ये वाला एंगल, एंगल ए डी बी ये वाला एंगल, एंगल ए डी सी दिस वन एंगल, ठीक है, एंगल ए बी सी दिस वन एंगल, एंड एंगल ए सी बी दिस वन एंगल। लेट मी ड्रॉ ऑन द कैनवस में ड्रॉ करता हूँ मैं। फिगर कैसे था हमारा, न्यूट्रॉन करते हैं, है ना बेटा। फिगर कैसे था हमारा, इस तरह से फिगर बनाया है ना बेटा, इस तरह से फिगर है हमारा वेदांश, और एक लाइन यहाँ से यहाँ था हमारा, ठीक है। एक्स्ट्रा बन गया ये, मिटा दो इसको। यू विल यूज स्केल एंड पेंसिल बेटा, है ना, ऑल डायग्राम्स मस्ट बी ड्रॉन यूजिंग पेंसिल, राइट। यहाँ नाम क्या था हमारा, बताना बेटा, ए था यहाँ पर, क्या ए था यहाँ, है ना, ए बी सी राइट, ए था ना बेटा, फिगर ही था ना, यस सर। या ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूँ नाम, एंगल्स का नाम देखो, देखो बेटा यहाँ पर एक एंगल तो ये देखो बड़ा सा एंगल, ये पहले छोटी देखो, एक छोटा एंगल देखो ये बन रहा है, एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल देखो ये पूरा, है ना, चौथा एंगल ये बन रहा है, देखो पांचवा एंगल ये बन रहा है, छठा एंगल ये बन रहा है, सातवां एंगल ये बन रहा है, और ऐसे एक एंगल और बन रहा है, देखो पूरा ऐसे ये वाला पूरा, है ना, ये भी तो एंगल है, एक स्ट्रेट एंगल है ये, एक एंगल ये बन रहा है, 8 एंगल एक्चुअली है, आपको साथ ही लिखना है, 7 एंगल्स यू टू राइट डाउन, ओनली 7 एंगल। तो सबके नाम लिख दो फटाफट, क्या लिख सकते हैं, मान लो इसको लिखो, पहले इसको लिखता हूँ मैं, ठीक है, छोटा वाला ये है, इसका नाम एंगल 1, इसका नाम एंगल 2, ये पूरा बड़े वाला का नाम दे दो एंगल 3, इसका नाम दो 4, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, and only name, but you will have to use 3 letters, particularly for angle 1, for angle 2 and for angle 3, और एंगल 4 को आप सिंपल एंगल भी बोल सकते हो, एंगल 5 को एंगल सी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप एंगल डी नहीं बोल सकते, है ना बेटा, कंफ्यूजन होगा। तो एंगल 1 का नाम कौन बताएगा, दिव्यजैन, कैन यू हियर मी, नेम एंगल 1। सर मैं बोलूं, हाँ बोलो, बोलो आप बोलो, यस। ABD, इसका नाम एंगल 1 का, ये वाला एंगल, ध्यान से देखो मेरा फिगर, ये वाला एंगल, ओनली दिस वन, ऐसे बन रहा है एंगल, वर्टेक्स के बीच में रखना है सर ABD, नहीं बेटा, वर्टेक्स ए है ना, वर्टेक्स 1 का एंगल का वर्टेक्स कौन है, ए है वर्टेक्स, BAC, एंगल बी ए डी बोलेंगे इसको, या एंगल डी ए बी बोलेंगे। चलो एंगल 2 का नाम बोलो, कौन बोलेगा, एंगल 2 का नाम, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दिख रहा है, ये यहाँ पर छोटा सा एंगल जो है ये BAC, एंगल सी, वर्टेक्स को बीच में रखना है बेटा, एंगल डी ए सी, हाँ बोल सकते हैं, एंगल डी ए सी, और क्या बोल सकते हैं इसको, एंगल सी ए डी भी बोल सकते हैं। चलो एंगल 3 का नाम, 3 मैंने मार्क किया, आप कहीं और मार्क कर सकते हो, 3 मैंने कहाँ मार्क किया, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल पूरा बेटा, टेल मी, BAC, एंगल बी ए सी या सी ए बी एक ही बात है, एंगल बी ए सी। चलो एंगल 4 का नाम बोलो, ये वाला ABD, एंगल ए बी डी, और एंगल ए बी सी बोल सकते हैं इसको बेटा, ABD, है ना, इसका नाम एंगल ए बी डी, और एंगल ए बी सी, और एंगल सी बी ए,
और एंगल डी बी ए और ओनली एंगल बी, ऐसे बोल सकते हैं इसको, है ना। सर चलो एंगल सी भी लिख सकते 5 का बोलो, फिफ्थ का नाम बोलो, एंगल 5। ACB, हाँ ए सी बी और ए सी डी दोनों चलेगा, है ना बेटा, एंगल ए सी डी और ए सी बी। चलो एंगल नंबर 6 का नाम बोलो, ये है एंगल नंबर 6, यहाँ मैंने नाम दिया है, कम ऑन। ADB, ए डी बी, वेरी गुड, एंगल ए डी बी और एंगल बी डी ये बोल सकते थे। और एंगल 7 का नाम बोलो, इस एंगल का नाम ADC, ए डी सी, एंगल ए डी सी। छोटा सा एंगल का साइन बनाएंगे, कौन लिखेगा बार बार ए एन जी एल ई, एंगल ए डी सी, है ना बेटा। सिमिलरली यू कैन डू अदर क्वेश्चंस, है ना। राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट, देखो 6 लाइन सेगमेंट, देखो लाइन सेगमेंट ए बी, बी डी, डी सी, ए सी और बी सी भी एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा, डी को भूल जाओगे तो। फिर विच टू ट्रायंगल्स हैव एंगल बी कॉमन, एंगल बी कौन कौन दो ट्रायंगल में कॉमन है, एक ट्रायंगल ए बी डी, एक ट्रायंगल ए बी सी में, एक बड़े ट्रायंगल में, छोटे ट्रायंगल में। ओके, विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। देन विल लर्न अबाउट क्वाड्रिलैटरल्स, ये पढ़ेंगे अगली बार। ओके, सो टुडे let us conclude Google Meet, है ना, by chanting शांति पाठ। ओके बेटा, so start। शांति शांति शांति। Sai Ram, let me stop recording and then you can also ask your any doubt you can ask बेटा, रुक जाना क्योंकि इसके बाद क्लास तो है नहीं हमारा।